Good morning, student. In last video we have read about the writing and city life. Dear student, you are not joining the online classes. Teachers are sending link to join the online classes, but you are not sure. I requesting to you, please join the online classes. Both you are joining them. If you join them, you will find more problem will solve about your studies. Last video we have explained when the society had developed became in a cities, what are the life of cities, how can the start of urbanization, and how they communicate each other. It is sure that when a society make they have own language, which kind of language adopted by them. When we talk about the writing work, first we talking about the writing, we find the evidence in Mesopotamia. There we get evidence the beginning of the city life. Mesopotamia, I have also explained, this land is between the Euphrates and the Tigris rivers, that is new part of the Republic of Iraq. You know, Mesopotamian civilization is known for its prosperity, city life. I have also explained about the wellness of rich literatures and the writing systems. Mesopotamia also have a rich about their the geographical condition. We have also discussed about their the urbanizations, their the development of their societies or their occupations, which kind of occupation they are hold by them. And we have read about the geographical conditions. Today we study about the movement of goods into cities. Means जब ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो गया, अर्बनाइजेशन सिस्टम डेवलप हो गया, तो वहाँ जो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन था, हाउ वाज दे वेयर. You will see on your screen. However, the rich food resources of Mesopotamia, its mineral resources were few. Most part of such lacked stone for tools, seals, and jewels. The wood of Iraqi date palm and poplar was not good enough for craft wheels or boats. There was no metal for tools, vessels, or ornament. So we can summarize that the ancient Mesopotamia could have traded their abundant textiles and agriculture produce for oats, copper, tin, silver, gold, shell, and various stones from Turkey and Iran. Across the Gulf, these latter regions had mineral resources, but much less scope of agriculture. Regular exchanges possible only when there was a social organization to equip it for an expedition and direct the exchange were indicated by the people of southern Mesopotamia. When we talk about the resources of मेसोपोटामिया, जब मेसोपोटामिया के
रिसोर्सेज के बारे में कहते हैं, वी नो वेरी वेल दे द प्रॉस्पेरस इन देयर द नेचुरल रिसोर्सेज, उनमें जो वहाँ पर, बट वी फाइंड दैट इन अ साउथ वहाँ पे आपके लैक ऑफ द स्टोन फॉर टूल्स सील्स एंड ज्वेल्स, यानी वहाँ पे जो औजार मुआर इनके कमियाँ रहती थी। इराक़ में खजूर पेपलर के पेड़ों की लकड़ी गाड़ियाँ बनाने के लिए और नाव के लिए कोई अच्छी नहीं थी। तो वहाँ पर आखिर जो वहाँ के लोग इस ट्रेड के लिए, बाई सी रूट ट्रेड्स के लिए, दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर कंट्रीज फ्रॉम स्पेशली फॉर द टर्की एंड ईरान। ठीक, दे ट्रेड अबॉन्डेंट टेक्सटाइल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वुड कॉपर, इन सब के लिए वह किसके डिपेंड करते थे? टर्की और ईरान पे, क्योंकि वहाँ की लकड़ियाँ उतनी अच्छी नहीं थी कि उसके लिए ट्रांसपोर्ट कर सके, सारी कर सके। इसके अलावा वे कपड़ा बनाने के लिए या कपड़े के लिए या अन्य कृषि उत्पाद के लिए काफ़ी मात्रा में वो वहाँ से ये मंगाते थे। इसके बदले में वह टेक्सटाइल्स और बाकी एग्रीकल्चर के जो चीज़ें उसको एक्सपोर्ट करते थे। इन देशों पास जो मिनरल रिसोर्सेज की तो कमी नहीं थी, बट दिस लेटर रिकॉग्नाइज द हैड अ मिनरल रिसोर्सेज बट मच लेस स्कोप फॉर द एग्रीकल्चर। रेगुलर एक्सचेंजेस पॉसिबल व्हेन देयर द सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, और यह तभी जो संभव था जब कोई एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन रहा हो जो कि इन ट्रेड को डायरेक्ट कंट्रोल कर सके, यानी जो इस तरह के एक्सपीडिशन चल रहे हैं या विनिमय है उसे कंट्रोल कर सके। यानी इसका मतलब कि इराक़ में एक ऐसी व्यवस्था मेसोपोटामिया में डेवलप थी जो ट्रेड को कंट्रोल करती थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी कंट्रोल करती थी। बिसाइड द क्राफ्ट ट्रेड एंड सर्विसेज, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द अर्बन डेवलपमेंट। इफ इट टेक टू मच टाइम or too much animal feed to carry grains or charcoal into the cities on pack animals or bullock cart, the city economy will not be viable. The cheapest mode of transport is everywhere over water. River boat or barges loaded with the sacks of grains and propelled by the current of rivers or wind. But when animal transport goods, they need to be fed. The canals and natural channels of ancient Mesopotamia were in fact routes of goods transport between large and small settlements. And in the account on the city of Mari, later in chapter, the importance of ferrets as a world route will became clear. Means here we talk about in this paragraph कि जो क्राफ्ट थे, ट्रेड, सर्विसेज या ये सारे लिए इफ ये वहाँ पे इफ़िशियंट ट्रांसपोर्ट ऑल्सो अवेलेबल इन अर्बन डेवलपमेंट, यानी इसके लिए जो ट्रेड था, चाहे शिल्प व्यापार या सेवा, ये सारे सब के लिए वहाँ पे ट्रेड सफिशिएंट ट्रेड था। जो हैवी जो थे एनिमल्स के ऊपर, जो हैवी एनिमल्स थे वह उनके पीठ पर डाल करके ले जाना कठिन रहता था। जैसे भारी जो वस्तु है जो काफ़ी वो डिफ़िकल्ट थे उन लोगों के लिए जाने के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था और खर्च भी ज़्यादा आते थे। तो इसके लिए दे यूज़ द वाटर रूट को यूज़ करते थे। और जो वाटर यूज़ थे वह सब जो विंग्स, जैसे यू नो वेरी वेल कि वह करंट जो नदी के बहाव से या सी के करंट कितने चलते थे, उनके डायरेक्शन को पाल, आपने देखा है कि समुद्र में जो नावें चलती हैं पाल बने होते हैं, पाल से उनके डायरेक्शन को कंट्रोल किया जाता है और उस दिशा के हिसाब से वो चलते थे। तो जो सी रूट्स के ज़रिए जो भारी चीज़ें लदी हुई अनाजों की बोरियां रहती थीं
दे विल कैरी फ्रॉम द सी रूट। ठीक, तो यहाँ पे जो पूरा मेसोपोटामिया में कैनल ऑफ द नेचुरल रिसोर्स ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामिया फैक्ट रूट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे कैनल्स जो थे वहाँ पे नहर जो नेचुरल रूट थे वहाँ पर थी, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इजी रहती थी। क्लियर? तो इस प्रकार ये हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जो डजला और फेरेट्स के जो रिवर थे वह बहुत इम्पोर्टेंट थे। मैं जो एक सिटी मारी सिटी जो कि वहाँ का एक शहर है जो कि वो ट्रेड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो ओवरऑल वी आर सीइंग इन दिस पैराग्राफ कि द ट्रांसपोर्टेशन आर पॉसिबल विद द सी रूट। रिवर रूट इज important for the trade. Trade was organized and their control was a definite organization which has meant the control of export and import. The lack of the resource of the oats, they export oats and other necessary things which are not produced in Mesopotamia, they export from the Iran and Turkey. Iran and Turkey, they supply the agriculture food to the Mesopotamia. So this types of trade was present in that time. Now the development of writing. Next, the development of writing. All society have language in which certain spoken sound convey the certain meanings. The verbal communication, writing to verbal communication, but it is different way. When we talk about the writing or script, we mean that the spoken sound are represented in the visual sign. The first Mesopotamian tablets written around the 3200 BC contained picture like sign and numbers. These were about the 500,000 list of auction, fish, bread, loaves, etc. List of goods that were brought into or distributed from the temples of Uruk, the city in the south. Clearly, writing began when the society needed to keep record of transaction, because in city life transaction occurred at different time and involved the many people in variety of goods. When we talk about the development of writing, we know every society has one language, every culture has a certain sound of language to convince each other. This verbal communication is called the word or called the verbal communication, but it is different. The verbal communication is called language. We could not understand how they can develop their language when we talk about them. तो ये हम जानते हैं कि हर एक चीज़ की एक भाषा होती है, उसका एक कम्युनिकेशन का एक स्तर होता है जिसे वो प्रोड्यूस करते हैं एक सोसाइटी, और वह जो कम्युनिकेशन का जो सिंबॉलिक स्तर होता है दे कन्वर्ट इनटू अ लैंग्वेज, लैंग्वेज में बदल जाती है। व्हेन वी टॉक अबाउट द मेसोपोटामिया के बारे में करते हैं तो नियर अबाउट वहाँ पे 3200 ईस्वी की बात करते हैं, तो जो वहाँ पे फर्स्ट एविडेंस पाया गया है 3200 BC में एविडेंस पाया गया है, जिसमें साइन और नंबर दोनों दिया हुआ है, यानी सिंबॉलिक दिया हुआ है और उसका नंबर भी शो किया गया है। यहाँ पे नियर अबाउट 5000 लिस्ट ऑफ ऑक्शन, फीस, ब्रीड, लव्स एंड यानी मछली, रोटना के, बैल के, उनके 5000 लिस्ट मिली है। एंड जो वहाँ के इन जो साउथ सिटीज़ हैं, जो उरेक वहाँ का एक साउथर्न सिटीज़ है, वहाँ के बारे में, वहाँ के मंदिर से और बाहर जाने वाले चीज़ें शो करता है कि जो चीज़ें हैं वहाँ उरेक शहर के बाहर मिला है, यानी वहाँ की जो वस्तु बिकती रही होंगी या वो चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट थी
उनके डिटेल्स पता चलता है, जिसे कि सिंबॉलिक तरीके से या नंबर के फॉर्मेशन में उन्होंने शो किया था। ठीक, ये जो लगता है जैसे यह रिकॉर्ड उस समय ज़रूरत पड़ रही होगी लोगों को कि यह रखना जाए, कि इससे यह पता चलता है कि जब राइटिंग वॉज बिगेन सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड। इस राइटिंग की जरूरत क्यों पड़ेगी कि वहाँ जो रिकॉर्ड रखा गया है उसको देखा जाए और समझा जाए। तो उनके रिकॉर्ड को रखने के लिए या सौदे में जो वेरिएशन आता है उसको मेंटेन करने के लिए इस तरह के रिकॉर्ड को रखा गया है। ओके, clear? Now in this page we see, you are seeing the picture, a clay tablet written on both sides in the cuneiform. It is the mathematical exercise. You can see triangles and lines across the triangle on the top of other side. You can see that letter have been pressed on into a clay. तो ये देखिए आप जो क्ले दिख रहा है इसमें कोई लैंग्वेज लिखी हुई है, ट्राइंगल्स बने हुए हैं। क्यूनिफॉर्म मीन्स द ड्राइड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेंसस मीनिंग ऑफ द वेज एंड फॉर्मा, यानी ये जो क्यूनिफॉर्म जो होता है लैटिन वर्ड है, खोटी और फॉर्म जिसका अर्थ होता है आकार से बना होता है, यानी एक आकार दिया है जो खोटी की टाइप का है। तो ये उसी लैंग्वेज में इसको लिखा गया है, टांगा बताया गया है, और ये शो कर रहा है कि इस लैंग्वेज में कोई मैसेज दिया जा रहा है जो कि मिट्टी की क्ले पर दिया हुआ है। ओके, मेसोपोटामिया रोट एंड द टैबलेट्स ऑफ क्ले स्क्राइब वुड वेट क्ले एंड पैट इनटू अ साइज ही कुड होल्ड कंफर्टेबल इन्वेंट है। तो जो क्ले भी जो बनाई गई है या जो भी उस टैबलेट्स बनाया गया वो इस तरह बनाया गया कि इस क्ले को हाथ पे लेकर के देखा जा सके। ही वुड बी केयरफुली स्मूथन इन सरफेस, यानी उसका जो सरफेस वो स्मूथ है, विद द शार्प एंड ऑफ द रेड कट obliquely. He would press wedge-shaped cuneiform sign on the smoothened surface while it is still moist. यानी एक तरफ वो चिकना रखा गया है सतह पे ताकि इसे नोक की तरह कहीं भी चीज़ को मतलब चिनकीला बना रहता है, यानी ये जो सूख जाता है तो पक्का हो जाता है तो उसको रखा है, यानी जैसे एक लकड़ी और मिट्टी को सुना कर उस पर लिख करके रख दिया। जो उनका एक रिकॉर्ड होता था जिससे कि पता चल जाता कि किसका कैसा क्या हिसाब था, कैसा क्या रखते थे। One dry the son of the clay would harden and tablets would be most the indestructible as pottery. When the written record to show the delivery of pieces of metal had ceased to be irrelevant, the tablet was thrown away. Once the surface dried, sign could not be pressed on a tablet. So each transaction, however minor, required a separate written tablet. This is why tablets occur by the hundred of Mesopotamian sites, and it is because to this wealth of source that knows so much more about the Mesopotamia than we do about the contemporary India. यानी ये जो उस समय जो ये क्ले बनाए जाते थे ये या सूख जाते थे, जो उस पर लिखा जाता था अक्षर व एक पर उसको रखा जाता था, उस पर उनका हिसाब किताब लिखा जाता था। कोई धातु के टुकड़ा या जब अगर वह कोई से हिसाब गड़बड़ा गया या उसका जो हो गया ख़त्म हो गया वह क्लियर हो गया तो उसे तोड़ के फेंक दिया जाता था। यानी एक तरह से वह बही खाता के तौर पे इसके पर जो पट्टिका की या शूल्स की जो सील्स से इसका यूज़ किया जाता था। मेसोपोटामिया में इस तरह के सैकड़ों पट्टियाँ मिली थी, जिसके कारण यह पता चलता है कि उस समय ट्रेड के कन्फर्म कंडीशन क्या थी, उनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता था।
By the 2600 BC, the letters became cuneiform and the language was the Sumerian. Writing was now used not only for keeping records but also making the dictionaries, giving legal validities of land transfers, narrating the deeds of kings, and announcing the changes a king had made in the customary law of the land. Sumerian, the earliest known language of Mesopotamia, was gradually replaced after 2400 BC by the Akkadian language. Cuneiform writing in the Akkadian language continued in use until the 1st century CE, that is more than 2000 years, यानी नियर अबाउट 2600 BC के आसपास जो वर्ड थे वो क्यूनिफॉर्म में हो गए, लैंग्वेज वहाँ की सुमेरियन थी। एंड अब जो इस लैंग्वेज का यूज नॉट ओनली फॉर द कीपिंग रिकॉर्ड के था बट आल्सो दे मेक द डिक्शनरीज एंड लीगल वैलिडिटीज, ट्रांसफर ऑफ लैंड्स and deeds of kings, announcing and changes of the king's orders and directions आदि के लिए फॉर द पीपल के लिए इन जो है लेटर्स को यूज़ किया जाता था। तो ये जो आपके जो ये सब थे पट्टिकाएँ थी, अब इसका प्रयोग कानूनी मान्यता राज मतलब भूमि लैंड का ट्रांसफ़र हो, राजा का कार्य हो, ऑर्डर हो, इन सब के लिए यानी आम जनता की सुविधा के लिए इन सब का यूज़ किया जाने लगा। मेसोपोटामिया के बाद 2400 के ईस्वी के बाद अकेडियन लैंग्वेज हैड टेक प्लेस फ्रॉम द सुमेरियन ऑफ द सुमेरियन लैंग्वेज, अकेडियन आ गई है। और इस समय जब अकेडियन जो लैंग्वेज अकेडियन की लैंग्वेज का जो आपको एविडेंस जो मिलता है नियर अबाउट 2000 ईयर बिफोर था, यानी 2400 था अकेडियन लैंग्वेज के एविडेंस मिलते हैं। आज भी वी कैन सी द यूज ऑफ अकेडियन लैंग्वेज इन साउथर्न इराक एंड अदर पार्ट्स ऑफ द इराक। क्लियर? तो दीज ऑल काइंड ऑफ राइटिंग हाउ दे हैव डेवलप्ड इन मेसोपोटामिया। In next video I will start the system of writing. Clear? Okay.